तो कर दी सर। एक बार करके देखते हैं। ओके, तो सबसे आज हम स्टार्ट करेंगे परसेप्ट्रॉन नेटवर्क। ठीक है, परसेप्ट्रॉन नेटवर्क और लीनियर सेपरेबिलिटी ये छूट गया है फर्स्ट यूनिट में, तो वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना सिलेबस आप? सो perceptron networks or this was introduced by Rosenblatt 1958, and this is a method of supervised learning. So this is mostly used for pattern recognition problems. Okay, so Rosenblatt's perceptron model is simply referred to as perceptrons, which is based on the McLeod-Pitts model of neuron. Okay, so simple neural model consists of a linear combiner, and in this perceptron model, definitely a hard limiter is always used for performing the signal function, and the summing node of neuronal models compute the linear combination of inputs applied to the synapses, and also uses the external bias for increasing or decreasing the strength of the induced local field. The resulting sum, that is induced local field, is applied to a hard limiter, and based on the value of the input, the neuron produces the output +1 if the hard limiter input is positive, and -1 if the hard limiter output is negative. Hard limiter input is negative, means the induced local field is negative, then the output will be -1, and induced local field is positive, then the output is the +1. So synaptic weights of the perceptron are denoted by W1, W2, W3. Perceptrons, actually this is mostly used for classification of the patterns, such as we have lots number of balls, and there are different colors. So depending on the patterns, the perceptrons will classify it into different categories. So a large number of perceptron layers can identify a large number of classes. So here you can see the signal flow graph of the perceptron. Here it is written in the syllabus, the perception network. Okay, so perception network is the same as perceptron network. Okay, because whenever you search the perception network in this whole book, you will not get. And perception is basically the concept we have made about something, and perceptron is also working on the same thing. This is perceptron network, and the linear separability is the quality that is utilized in perceptron networks. Okay, so this is the perceptron network signal flow. There are a number of inputs x1, x2, x3, and xm, and there are a number of weights, bias b, and the induced local field v. This is after this a hard limiter is used, that is a signum function, and induced local field after a signum function gives the output.
Okay, so here we can see that the induced local field applied to the hard limiter is the multiplication of weight matrix into input matrix plus bias. Okay, so goal of the perceptron is to correctly classify the set of externally applied inputs to the two classes. Okay, suppose that one set of x1 x2 x3 is 2 4 5, so it may be on belong to another class. Suppose it at the same time another set of input is 5 7 and 6, it represents the another class. जैसे RGB है, RGB में एक 10 के कॉन्फ़िगरेशन में एक RGB कलर है आपका, तो 10 के टर्म्स में उसका एक पैटर्न होगा. एंड आफ्टर लुकिंग इनटू द पैटर्न ऑफ दिस 10, it can the perceptron can classify whether which is the color of this input pattern. So depending on the inputs, the classes zeta 1 and zeta 2 are classified. Okay, so the decision rule for classification is to assign that x1 x2 belongs to the set of inputs x1 x2 belongs to zeta 1 if perceptron output is +1, and if perceptron output is -1, then it is belonging to zeta 2 class. Suppose that some pattern is like that, there is a house and a tree and a suppose that a cow is standing there. This is a pattern. Suppose 3 inputs are there. Okay, so if someone says that whenever you will go on that location and there will be a tree and a house and a cow, then any person when looks that these all 3 are present, then he will say that I have reached in the same place. Otherwise he has not reached in the same place, means he has classified into 2 classes. Am I in this the desired place or different place? तो वो पैटर्न है जो इनपुट पैटर्न दिया गया उसके बेस पे वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया. ओके, ऐसा ही परसेप्ट्रॉन का वर्क है. So in the simplest form of the perceptron, दो so that there is a coordinate and this represents the x1 coordinate and x2. Any pattern of input x1 x2, suppose that this is 2 3. Okay, so here 2
and here sorry, this is 2 and this is 3. This point is P1. Okay, this is defined by x1 just we are considering only two inputs. Okay, suppose another value is x1 x2 is 5 0.5 0.4. Suppose another point is here, this and this. Okay, so layer the boundary decision line will be defined by w1 x1 plus w1 w2 x2 plus b equal to 0. Suppose we are taking no biasing and w1 and w2 are set equal to 1, weights, initial weights are 1, then our decision boundary is x1 plus x2 equal to 0. Okay, means either of 1 plus 1 plus 1 minus 1 और 0 0. ओके, तो यहाँ पे एक प्लस 1 होगा, एक माइनस 1 होगा, वहां से जाएगा पॉइंट, एक 0 से होके जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका होगा ना डिसीजन स्पेस. क्यों, अगर हम यहाँ पे W1 और W2 को 0 जूम करें इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू 1, देन x1 प्लस x2 will represent the line which is passing from the origin. So either it should be -1, this is 1, or this is 1 minus 1, okay, or 0 0. So this will pass from the origin. Okay, this will go to 1 minus 1, and it will also go in one direction, minus 1 plus 1. Suppose here this is minus 1 1 and this is So BP तो constant है. yes. So हाँ, तो बी W1 कांस्टेंट हमने यहाँ पे बाइसिंग 0 ली है. सपोज कि अच्छा, अगर बायस हम 1 लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग द बायस 1. ओके, इन दैट कंडीशन अगर हम यहाँ इफ वी टेक बायस 1, then what will happen, x1 plus x2 is equals to minus b. यस. तो यहाँ पे बायस भी लिया है, तो उसके लिए x1 अगर -1 है और +1 ये है, तो x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, x1 अगर -1 लिया है हमने, तो x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. और ये बायसिंग +1 है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और -1 है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा. इसे होगा ना, क्यों. यहाँ पे देखो y मीन्स x2 इक्वल टू माइनस x1 माइनस b, ऐसा आ जाएगा. होगा. तो y इक्वल टू mx प्लस सी, m इक्वल टू स्लोप निगेटिव है, स्लोप इज -1 एंड बायस निगेटिव है. ओके, मीन्स द इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे निगेटिव है, इंटरसेप्ट निगेटिव. तो अगर b अगर 1 लेंगे तो लाइन इधर को शिफ्ट होगी, और b अगर -1 लेंगे तो लाइन ऊपर को शिफ्ट होगी. ओके, ये समझ में आ रहा है. This represents the
इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे W2x2 लेते हैं और यहाँ पे W1x1 लेते हैं तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन है वो कैसा होगा? लाइन की इक्वेशन इक्वल टू x2 इक्वल टू माइनस W1 अपॉन W2x1, ये m रिप्रेजेंट हो जाएगा, एंड माइनस b अपॉन W2, ये एक बाइसिंग होगी। ओके, तो ये एक लाइन का इक्वेशन है। ऐसे ही जब हमारे वेक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3, तो 3 होगा तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज दैट दिस इज द प्लेन, देन बाय आफ्टर बाइसिंग दिस इज द प्लेन मींस क्रॉसिंग फॉर 0, एंड अनदर प्लेन इज this. Okay, so this then that is three dimensional, and there are 3 inputs x1, x2, x3, then that will represent the 3-dimensional plane. And if there are multiple inputs x1, x2, x3 and m dimensional, then this is the m dimensional hyper plane. Okay, hyper plane. ठीक है, तो यहां तक समझ में आया है? तो दिस विल रिप्रेजेंट द हाइपर प्लेन बिलो एंड अबोव विच देयर आर 2 क्लासेज। अब यहाँ 3D में क्या होता है? सिंपली 3D में होगा कि यहाँ पे एक प्लेनर, ये पॉइंट्स प्लेन में बदलेंगे। दिस पॉइंट्स कैन ओनली चेंज इन द प्लेन। ओके, कि सपोज कि एक हमारा ये प्लेन है, तो ये इस प्लेन में ही रहेंगे वो वैल्यूज, ठीक है ना। जो कोई भी पॉइंट वेरी होंगे x1 x2 का जो कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ एक प्लेन में रहेंगे। बट जब हमारा इनपुट 3 डायमेंशनल है तो एक पूरा एक क्लस्टर यहाँ पे होएगा 3 डायमेंशनल क्लस्टर, और एक बिलो द हाइपर प्लेन 3 डायमेंशनल क्लस्टर होगा। एक फुटबॉल जैसे भी हो सकता है, एक बादल क्लाउड जैसा भी हो सकता है, कोई भी उसका शेप हो सकता है। तो दिस इज द 2 patterns. Okay, and now you see the linear separability of these patterns. So a point x1 x2 which lies above the boundary line is assigned to class zeta 1, and a point x1 x2 that lies below the boundary line is assigned to zeta 2. Okay, and effect of bias b to merely shift the decision boundary away from the origin से हटा लेता है, उसको ऊपर नीचे करेगा अगल बगल, लेकिन वो शिफ्टिंग हो जाएगी। ओके, तो परसेप्ट्रॉन कन्वर्जेंस थ्योरम। सो परसेप्ट्रॉन्स ट्रेन इट्स वेट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन बाउंड्री, as we have trained its perceptrons initially by presenting a different set of input patterns and saying the perceptron network that this should be of pattern this, and this input set is of pattern this. Okay, then whenever we present that certain class of data, the perceptron will provide us the output. Okay, so एक बार हम उसकी ट्रेनिंग कर देते हैं तो वेट्स जब ट्रेन हो जाएंगे तो जब भी हमें वो पैटर्न दिया जाएगा परसेप्ट्रॉन को, तो क्या करेगा वो? दैट विल टेक द डिसीजन विदर इन विच क्लास दिस डेटा सेट इज। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे एक छोटे से बच्चे को आप 10 फल दे दीजिए और बता दीजिए कि ये फल है, ठीक है, या कि 10 आम दे दीजिए, उसको बता दीजिए कि आम है, और फिर उसे दूसरी बार दीजिए कि ये सेब है, और उसे बता दीजिए कि हाँ ये सेब है, 10 उसको सेब दे दीजिए। दूसरी बार जब आप उसको अगली बार क्या करेंगे, वो अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ ये सेब है, ये आम है,
और दूसरी बार जब भी आप उसको आम या सेव देंगे तो बताए कि हाँ ये सेव है, ठीक है। मीन्स द परसेप्ट्रॉन लर्निंग हैज कंप्लीटेड एंड द वेट्स आर ट्रेन्ड बाय गिविंग द इनपुट एंड आउटपुट डेटा सेट। और जब भी हमारा वो डेटा सेट उसके सामने आएगा तो दो क्लासेज में क्लासिफाई कर देगा। अब उसको मिक्स करके दे दोगे कि आम और सेब को अलग रखो, तो बहुत सारे आम और सेब के बीच में से उसको अलग अलग कर लेगा, ठीक है। तो सेम यही चीज है पैटर्न क्लासिफिकेशन। पैटर्न क्लासिफिकेशन मीन्स पैटर्न ऑफ एनीथिंग, it can be color, it can be shape, okay, it can be number. Suppose that the length of the something, so pattern may be anything. So this is the figure which is showing the position of class zeta 1 above the boundary and position of class zeta 2 below the boundary, okay। दिख गया, ये समझ में आ रहा ना। Now you see here the equivalent signal flow graph of the perceptron as same as I have shown you previously. One figure more there was in hard limiter was shown there, okay। So here you see the what is the linear separability and non-linear separability, okay। So suppose a decision boundary line or a plane hyperplane can pass through pass between the classes of patterns, then these two classes are said to be linearly separable classes. Here in this figure you can see that no any plane can pass from here, okay। If you pass a line, then you will have you should have a curved line. So there is no any proper rule according to which we can classify the patterns, okay। So have you understood about the linear separability and non-separability? जैसे लीनियर सेपरेबिलिटी का एक एग्जांपल बताओ। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, रोड का किनारा है, रोड और रोड के किनारे के बीच में एक लीनियर बाउंड्री है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर सेपरेबिलिटी, ओके। सो दो पैटर्न जो है, एक कलर है, रोड का कलर है या कि उसका स्मूथनेस है, और एक पैटर्न है कि रफ सरफेस है, तो वो दो क्लासेज हो गई, ओके। यहाँ पे हम इसको इंड्यूस्ड लोकल फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करें nth इटरेशन पे, देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेट मैट्रिक्स, वेट वेक्टर इनटू इनपुट वेक्टर एट nth इटरेशन, and it is the necessary condition for the perceptron to work properly. Two classes must be linearly separable, and these classes should have sufficient separation from each other, okay, so that a decision surface or a decision line can be drawn between that. So in case of non-linearly separable situation, computing is not possible in the perceptron, okay. So it affects the perceptron. Now here you can see that if you represent n dimensional vector, input vector x and n dimensional weight vector wt, transpose is taken for making it as a row vector. So if this is greater than 0 for every input x means whatever the vectors have been presented for it,
and then the calculation is done. Based on that, if it is greater than, this calculation is greater than 0, then the inputs belong to the classes 1, and this pattern belong to class 1, and if it is less than 0, then it belongs to -1, that is class 2. Okay, so यहाँ पे जो एल्गोरिथम फॉर एडाप्टिंग द वेट वेक्टर ऑफ एलिमेंट्री परसेप्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे परसेप्ट्रॉन को करेंगे. If the weight vector is such that the pattern is correctly identified, okay, at nth iteration, the input pattern is such that the class has been correctly classified, then the weights are not updated. Okay, जैसे आप उसको किसी बच्चे को बोल दीजिए कि हाँ ये मैंगो है, और एक बार उसने मैंगो फिर से बता दिए कि हाँ ये मैंगो है, फिर आप ये नहीं कहते कि नहीं ये एप्पल है, तो उसमें आप दोबारा उसकी ट्रेनिंग नहीं करते. वंस ही हैज गिवन द प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर क्लासिफिकेशन, द वेट्स आर नॉट अपडेटेड. सो Wn+1 इक्वल टू Wn मीन्स nth इटरेशन पे जो वेट होगा, दैट द सेम वेट विल बी एट n+1. ओके सर बच्चा भूल गया तो बच्चे का भूल जाना मतलब एक तरह से उसका वेट जो है, उसका किसी एक्सटर्नल इनपुट पैरामीटर जो पैटर्न है उससे इफेक्टेड हो गया है, और वेट्स एक बार फिर से ट्रेन हो गए हैं. उसको किसी ने गलत एक इनपुट आउटपुट डेटा से प्रोवाइड करके उसके वेट्स की ट्रेनिंग गलत कर दी है. सो उसके वेट्स का फिर से ट्रेनिंग रीट्यूनिंग करना जरूरी रहेगा. तो फिर से लूप चला जाएगा, मतलब लूप टाइप है. तो फिर से लूप टाइप चला जाएगा. बच्चा सही होगा सर. बच्चा का ही होगा. वो एंजॉय कर रहे तुम लोग. ठीक है, आगे चलते हैं. वैसे भी ज्यादा कुछ है नहीं. अब यहाँ पे देख लो, यहाँ वही सिस्टम लगा दिया है. लर्निंग रेट पैरामीटर, अगर क्लासिफाई सही नहीं कर पाया, एक हमने इनपुट बताया उसको कि ये डेटा सेट है, ओके, और ये क्लास आनी चाहिए हमें, ठीक है. बट ही हैज नॉट एबल टू, this perceptron network has not been able to properly classify for that input set, okay, for in that input data, then the weights should be trained, okay, and weights should be trained according to आवाज आ रही क्या? यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर आपका शायद. स्क्रीन शेयरिंग दिख रही थी क्या अभी तक कि नहीं दिख रही तुम लोगों को? तब तक दिख रही थी सर, आप जैसे डिस्कनेक्ट हुआ तब चला गया. अच्छा, मैं फिर से शेयरिंग कर रहा हूँ. ओके, so what you see here, that
there is a learning rate parameter in the same manner as in the previous algorithms, but in the previous algorithms what you were doing, the learning rate parameter multiplied by local gradient into input, okay, and the local gradient also depends on the error of the previous stage, input of the previous stage, as well as the local gradient of previous stage, okay, and in each stage you calculate the local gradient. So here only the thing is that you multiply the learning rate parameter to the input vector simply, and this is the weights are updated, okay. तो अगर एक मैट्रिक्स या एक वेक्टर है उसमें एक कांस्टेंट लर्निंग रेट पैरामीटर कब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सभी कॉलम में मल्टीप्लाई होंगे कि ये मैट्रिक्स का क्या फार्मूला है, मतलब क्या उसका रूल है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है कि इंडिविजुअल से, किसी एक रो से या कॉलम से? सभी ठीक है, एज्यूम करो कि x1 इंटू ईटा n, x1 n इंटू ईटा 1 क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन के लिए n = 1 रख दो और यहाँ x1 रख दो, तो ईटा x1 प्लस w = wn प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब सेकेंड अपडेटेड वैल्यू। ऐसे ही तो मतलब यहाँ पे हमने वेट कम कर दिया, अगर हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, बिलोंग्स टू क्लास कैटेगरी सेकेंड ग्रेटर होगा अगर ये, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा वैल्यू ग्रेटर होगा तो वो क्लास, तो उसका वैल्यू हमें कम करना पड़ेगा, ओके। यहाँ देखो, यहाँ जो वेट्स हैं, यहाँ हम इस रूल को दूसरा कर लिए हैं, क्लास दूसरा रूल बना दिए, यहाँ पे बिलोंग टू कैटेगरी जीटा 1 है, अगर ग्रेटर देन 0 है उसके ऊपर है। अब यहाँ पे हमने उसको एक कंट्रोल एल्गोरिथम चलाएंगे ना हम, कि मतलब वेट्स हम कम कर दें इसको, तो हम उसको डिफाइन करेंगे परसेप्ट्रॉन को कि ये क्लास जीटा 2 में है अगर वेट इनटू इनपुट ग्रेटर देन 0 है, और कैटेगरी 1 में है अगर लेस देन 0 है, ठीक है। और यहाँ लर्निंग रेट पैरामीटर हम ये सब निकाल लेंगे, ये पूरा जो भी हमारा प्रेजेंट में वेट मैट्रिक्स है और इनपुट मैट्रिक्स है, जब भी देखेंगे कि 0 है, ओके, 0 से ग्रेटर है, तब भी वो कैटेगरी 2 में ही आ रहा है, तो हमको वेट ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसे सेंस करना चाहिए कैटेगरी 1, बट यहाँ कैटेगरी 2 सेंस कर रहा है, मतलब क्लासेज को करेक्टली क्लासिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्लास 1 में आ रहा है जीटा 1, जब ग्रेटर है 0 के, तो ये सही क्लासिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे वेट्स अपडेट नहीं हुए, और यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन हुआ कि ग्रेटर देन 0, और परसेप्ट्रॉन ने क्लासिफाई किया कि इट इज इन कैटेगरी 2, तो हम समझ गए कि द परसेप्ट्रॉन नीड्स द अपडेशन इन द वेट्स। अब अपडेट कैसे करेंगे, उसका ये वेट मैट्रिक्स सब वैल्यू बढ़ी हुई है, तो टू रिड्यूस द वेट वी विल सिंपली यूज दिस एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि लेस देन 0 है और वो कैटेगरी बता रहा है कि जीटा 1 में है, जबकि होना चाहिए जीटा 2 में, ये इनकरेक्टली क्लासिफाई किया, ओके। सो इन दैट कंडीशन वो मतलब इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कैटेगरी 1 में दे रहा है, मतलब उसका हमको वेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो कैटेगरी 2 में जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट हाउ द परसेप्ट्रॉन इज रॉन्गली क्लासिफाइंग द क्लासेस, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होती है, ओके, जब ये जहाँ पे क्लास 1 आइडेंटिफाई होनी चाहिए वहाँ पे क्लास 2 आइडेंटिफाई हो रही है, तो
हम यहाँ पे ये वेट अपडेट करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे क्लास 2 होना चाहिए डिफाइन, वहाँ क्लास 1 आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हम ये वेट अपडेट यूज करेंगे। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि सम पैटर्न्स के लिए फॉर सम सर्टेन पैटर्न्स इट करेक्टली क्लासिफाइज द क्लास फॉर जीटा 1 क्लास को तो सही क्लासिफाई कर रहा, लेकिन वो क्या कर ले रहा, ये वाला गलत कर दे रहा है। मतलब जहां पे हमारा जीटा 2 होना चाहिए वो जीटा 1 कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में हमको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब सपोज कि ये तो सही कर रहा, लेकिन इस कंडीशन में जीटा 1 होना चाहिए, तो जीटा 2 क्लासिफाई कर दे रहा है वो, तो फिर हम ये वाला रूल अपडेट लगाएंगे। ओके, यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन? चलो, इसको जिसको कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई, फिर से पूछो, हम फिर से बताते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ अभी बच्चे को सही तरह से जानकारी है, वो सही तरह से बता पा रहा है। यहाँ बच्चा उल्टा बता रहा है। ठीक है, और जब बच्चा उल्टा बताएगा तो हम फिर उसके दिमाग में भरेंगे कुछ बातें। ठीक है, अंडरस्टैंड? हो सकता है हो सकता है वो मैंगो के लिए तो सही क्लासिफिकेशन बताया, उसको एप्पल दिया गया दोबारा, तो एप्पल जब दिया गया तो बोलता है कि मैंगो है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नहीं उसको समझाएंगे, नहीं दिस इज एप्पल। ठीक है, अब उसने क्या किया, एप्पल दिया गया, एप्पल को तो सही उसने एनालाइज कर लिया कि हाँ ठीक है, बट उसने क्या किया, जब उसको मैंगो दिया गया उसको भी एप्पल कह दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम उसको समझाएंगे फिर से, क्लास ये 3.55 इक्वेशन फर्स्ट, उसको हम फिर समझाएंगे कि नहीं बेटा ये एप्पल है। ठीक है, तो फिर वो सही तरह से क्लासिफाई करेगा। तो ये चीजें हैं, ये आप समझ में आ गया है आपको? बोलो यस सर। यस यस सर। सर। सर को रखा है? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर बोले कि कोहरा रखा है, कब इसको बोलते हैं? क्या चीज है? एक मिनट रुको, चार्जर लगा ले, नहीं बंद हो जाएगा। तो हो गया है, परसेप्ट्रॉन और लीनियर सेपरेबिलिटी खत्म हो गया है। अब जो है तुम्हारे यूनिट 1 में कुछ नहीं बचा है, जो सब चलेगा यूनिट 2 से ही आगे चलेगा। यूनिट 2 को कुछ पोर्शन हो भी गया है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप वगैरह हो गया, चलता रहेगा इसे धीरे धीरे रेगुलर करते रहेंगे तो, है ना, कोई दिक्कत? तुम लोगों को जान के एक जानकारी बहुत आश्चर्य होगा, हमारे लैपटॉप का जो माउस सप्लाई है, फिर भी हमने उसको चलाया है। पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट किए फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने बाहर से एक लीड बनाई है, डबल यूएसबी, मतलब दोनों साइड उसका यूएसबी है, और एक चार्जर में खोस देते हैं, इधर एक चार्जर में लगा देते हैं, और इधर 5 वोल्ट सप्लाई कंप्यूटर को दे देते हैं, और बगल से लगाते हैं जब पेन ड्राइव तब सर्च करता है। अगर चार्जर नहीं लगाएंगे ना बाहर से तो नहीं देता। माउस यूएसबी कुछ भी सेंस नहीं कर रहा था। जब मैंने 5 वोल्ट बाहर गया होगा, कुछ हुआ होगा, क्योंकि शॉर्ट हो गया था चार्जर, मोबाइल पिछला वाला जो नया खरीदे ना, उसके पहले एक मोबाइल था वो शॉर्ट हो गया था। तो ठीक है, ये आपका लगभग कंप्लीट है, और इसको अच्छे से थोड़ा और पढ़ लेना। बाकी सब बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो 60 में जो जितना जरूरी है उतना पढ़ लेना, और एग्जाम में भी लगभग जरूरी चीजें ही आएंगी। बहुत सारा तुम लोगों के दिमाग पर बोझ लेने का और बोझ तुम लोगों के ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं है।
इसलिए इतना ही कर लो काफी है। तो ये सब चीजें जो है पढ़ लेना, कुछ भी हो सकता है इसमें से भी आ जाए, तो जानकारी रखना, ठीक है। इसको एक जानकारी के तौर पर इंटरेस्ट के तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरी एल्गोरिथम है कैसे क्या ट्रेन जो है किस हिसाब से किया है। यहाँ एक डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दिया है वेट्स की, परसेप्ट्रॉन की। ओके, d equal to +1 if xn belongs to category 1, if xn belongs to category 2, एक्चुअल सिस्टम का आउटपुट क्या होना चाहिए और डिजायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए, तो इनकी +1 होना चाहिए। +1 है तो क्लास 1 है, अगर -1 है तो क्लास 2 है। अदरवाइज आप सिस्टम में सोचो कि सडनली वो यहाँ जहाँ +1 होना चाहिए वहाँ -1 आ गया, डिजायर्ड है +1 बट सिस्टम ने दे दिया -1, तो यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगी तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग पैरामीटर बनेगा 1 -1, ओके। तो 2 यहाँ पे वेट्स अपडेट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर -1 है और आउटपुट +1 दे रहा है तो -1 -1 -2, तो वेट्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एक लर्निंग एल्गोरिथम दिखाई हुई इसकी परसेप्ट्रॉन नेटवर्क की, ओके। तो आप ये देख लेना, है ना, कोई दिक्कत है। यहाँ पे वही चीज दिया है कि आउटपुट जब हम डिजायर्ड डेटा रहता है हमारे पास किसी, देखो एक तो हो गई कि टारगेट डेटा हमारे पास है, टारगेट डेटा नहीं है तो सिर्फ जो वेट एडॉप्शन है अगर सिर्फ xn पे डिपेंड करता है तो वो कैसा हो गया, विथआउट टीचर। और यहाँ डिजायर्ड टारगेट डेटा हो गया तो विथ टीचर। तो यहाँ पे आप ये आपको अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ओके ओके सर। बच्चों को दिक्कत नहीं सर, अब तो पहले तो ये था थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग के लॉजिक से लगने लगे हैं सर। कैसा प्रोग्रामिंग के लॉजिक से, मतलब कि सर ये जैसे टर्म था जैसे d-y था, जैसे बिना उस आपने बोला कि बिना उसका टीचर, तो जैसे 2 रखेंगे तो वो पूरा लॉजिक जनरेट करते थे ना जैसे प्रोग्रामिंग में। हाँ। सर वैसे लगने लगा ये थोड़ा। तो गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं नहीं सर, समझ आ रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए ज्यादा दिमाग चलो ना ठीक लगाओ। लेते हैं, है ना, क्योंकि वैसे भी आज 7 लेक्चर वाला पैटर्न है हमारा। अगर इनपुट में अगर 7 लेक्चर हैं तो अपन को पैटर्न से ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ आज ये जो है तो थर्सडे है, ठीक है। और जिस दिन 2 लेक्चर है और वो भी 10 बजे और 5 बजे है तो समझ जाना चाहिए, चाहे दिन भूल जाए लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि मंडे है अगर 2 लेक्चर है तो, ठीक है। तो ये भी तो और सर कैसे हैं? शॉर्ट टर्म्स वही है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बस जीवन चल रहा है। सर शादी